नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। क्या गाड़ी में मौजूद चाइल्ड लॉक का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं? सोशल मीडिया में वायरल हो रहे मैसेज का सच क्या है, जानने के लिए सबसे पहले करते हैं इसी मैसेज की पड़ताल। क्या कार में चाइल्ड लॉक परेशानी का सबब बन सकता है? क्या चाइल्ड लॉक टैक्सी में होने वाले क्राइम की बड़ी वजह बन सकता है? क्या चाइल्ड लॉक की वजह से महिला सुरक्षा को खतरा है? आप सोच रहे होंगे कि कार में बच्चों की सुरक्षा के लिए लगाया गया चाइल्ड लॉक मुसीबत कैसे बन सकता है? कैसे ये महिला सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है? और कैसे इससे टैक्सी में अपराध बढ़ने की वजह बताया जा रहा है? दरअसल सोशल मीडिया में वायरल एक मैसेज में ऐसे ही चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। करीब 2 मिनट का ये वीडियो 7 समंदर पार का बताया जा रहा है, जो वायरल होता हुआ हिंदुस्तान तक आया है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि चाइल्ड लॉक की वजह से एक महिला न सिर्फ मुश्किल में फंसी बल्कि उसकी जान भी चली गई। वीडियो में चाइल्ड लॉक लगने के बाद के हालात की जानकारी दी गई है। There is a definite data to suggest that most of the crimes that have happened against women in taxis have happened because the car was child locked. And if the car is child locked, as a passenger in the back seat, you cannot open the door and you cannot roll down windows because the master switch for the windows is with the driver. Most of the cars that operate as taxis today are mid-range sedans, and most of them come with an automatic basic child lock facility. Here's what you can do, and here's what you must tell all of your family members to do. This is a taxi, for example, that we've called around. It's a standard vehicle. Now, before you get into that vehicle, here's what you can do. You open the door to get in. I'm going to ask the camera to come in. Here, this is the physical child lock facility. It's unlocked now. If it's pushed that way, it's locked. It's marked very clearly on all cars. Before you get into the car, check for this facility. If it is locked, this is what happens. You get in. If you're in a child-locked car, you can only open the door from the outside, which means that the passenger in the back of the car is effectively trapped. There is only one way to stop it. Every time you get into a car that is not yours, you have to check for the switch. It will take a moment, but it is so important. Make sure that the switch is off. The other thing we are going to do as a channel at Mirror Now is ask for all state governments, and every state has to do it, is to put a sticker on the car instructing every passenger to check the child's lock and make sure the child lock is not on. The more important thing for the governments to do is to make sure that if a car is registered as a commercial vehicle or a taxi, the child lock is effectively taken away completely, because it's completely unnecessary in a taxi. You only need child locks in private cars. We appeal to the government to make this change, but I appeal to you to actually let as many of your family members know that this is an important thing. सोशल मीडिया में घूम रहे इस मैसेज पर हमारी नजर पड़ी तो हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया। हम जानना चाहते थे, क्या चाइल्ड लॉक सवारी को मुश्किल में डालता है? क्या चाइल्ड लॉक सुरक्षा के साथ साथ मुश्किलें खड़ी करता है? क्या चाइल्ड लॉक का मिसयूज होता है? इन्हीं सवालों के साथ हमने वायरल मैसेज की पड़ताल शुरू की। कितनी महिलाएं टैक्सी और कैब से सफ़र करती हैं, कुछ ऑफिस जाने के लिए, कुछ कॉलेज जाने के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए। पर क्या आपने सोचा है कि गाड़ी में मौजूद चाइल्ड लॉक का फीचर भी खतरनाक हो सकता है? ये हम नहीं, एक वायरल हो रहे मैसेज का दावा है कि गाड़ी में मौजूद चाइल्ड लॉक का फीचर काफ़ी घातक साबित हो सकता है और कुछ लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब मैंने ये मैसेज देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मैं भी एक कामकाजी महिला हूँ और अक्सर टैक्सी बुक करती रहती हूँ। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे और अपने एक्सपर्ट्स के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस मैसेज के दावे में कितना सच है और कितना झूठ। पड़ताल शुरू करते ही हमने इंटरनेट खंगाला तो चलती कार में महिलाओं के खिलाफ अपराध की कई खबरें हमारे सामने आई। 16 मई 2017 को लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में 8वीं की छात्रा से चलती कार में 3 लोगों ने गैंगरेप किया। 14 मई को गुड़गांव में एक 22 साल की महिला से 3 लोगों ने चलती कार में गैंगरेप कर उसे दिल्ली में एक सड़क पर फेंक दिया। 9 मई को हरियाणा के रोहतक में निर्भया गैंगरेप जैसी वारदात सामने आई, जब अज्ञात लोगों ने एक महिला के साथ चलती कार में गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी। राजधानी दिल्ली में भी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। चाइल्ड लॉक के बेजा इस्तेमाल से जुड़े सवालों का बेहतर जवाब हमें ऑटो एक्सपर्ट्स ही दे सकते थे। लिहाजा हम देश के जाने माने ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन के पास पहुंचे ताकि वायरल मैसेज का सच सामने लाया जा सके। उन्होंने हमें बताया कि आजकल हर कार में चाइल्ड लॉक का फीचर होता है,
ताकि कार से सफर करने वाले बच्चों की हिफाजत की जा सके। चाइल्ड लॉक एक ये फीचर है जो आजकल हर गाड़ी के अंदर आता है, वो है कि बच्चे जो पीछे बैठे हों तो शरारत के अंदर वो अपना दरवाज़ा अंदर से ना खोल सकें। दे हैव टू बी सुपरवाइज्ड। तो वो सुपरविजन के लिए एक मैन्युफैक्चरर्स ने एक चाइल्ड लॉक उन्होंने लगा दिया है, जिससे कि बच्चे की सेफ्टी के लिए। लेकिन हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि क्या चाइल्ड लॉक टैक्सी में सफर करने वाली महिलाओं के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बच्चों के लिए हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि बच्चे सुरक्षित रहें। नॉर्मली हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन हमको देखना ज़रूरी है। ऑनेस्टली मुझे चाइल्ड लॉक के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, एंड आई फील दैट देयर आर पीपल हु मतलब लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड लाइक महिलाओं के लिए भी। एंड तो आई थिंक उनको आई थिंक ज़्यादा लोगों को पता होना चाहिए चाइल्ड लॉक क्या है, एंड गलत इस्तेमाल नहीं करना। इतना हरी में होते हैं वो कि उनके माइंड में आता ही नहीं है कि मेरे को चेक करना चाहिए। उनको बस ये होता है, उनके माइंड में डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, जितना जल्दी हो सके हम पहुंच जाएं। तो नहीं पता होता उनको। गलत एक्चुअली लगता नहीं है, हो सकता है कर भी सकता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है आई गेस इतना ईजिली, या फिर कुछ नॉर्मली होता नहीं इतना। लिहाजा सबसे पहले हमने चाइल्ड लॉक का डेमो करने का फैसला किया। खुद टूटू धवन ने हमें बताया कि कैसे चाइल्ड लॉक लगाया जाता है। क्या होता है चाइल्ड लॉक, आप हमें दिखा सकते हैं? ये है चाइल्ड लॉक। इसको आप इधर अंदर से ऑन कर देंगे तो दिस विल बिकम नॉन ऑपरेबल। अच्छा, वापस मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ? आप हाँ, इसको दरवाजे को खोल नहीं सकते अंदर से। अच्छा। ये सिर्फ बाहर से ही खुल सकता है। बाहर से खुल सकता है। हाँ, वैसे इसको अनलॉक कर दें तो देन यू कैन ऑपरेट दिस। अब ये आप दरवाजा को अंदर से खोल सकते हैं। अच्छा, तो अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठती हूँ और अगर जो गाड़ी का ड्राइवर है उसने चाइल्ड लॉक ऑन किया है और मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाती हूँ, तो फिर मैं बाहर नहीं निकल सकती, मैं ट्रैप हो जाती हूँ, बाहर नहीं निकल सकती जब तक कि मास्टर स्विच ऑन ना किया जाए आगे से। सर, ये मास्टर स्विच है सिर्फ शीशों के लिए। अच्छा। तो वो उधर से मास्टर स्विच ऑफ कर देगा तो आप इनको शीशों को भी नहीं ऑपरेट कर सकते, विद द रिजल्ट कि आप शीशा नीचे करके चिल्ला भी नहीं सकते इन केस यू वांट हेल्प। इन केस यू गेट ट्रैप्ड इनसाइड द कार एंड यू वांट हेल्प, तो आप शीशा भी नीचे नहीं कर सकते। तो वो मास्टर स्विच जब तक ऑन नहीं होगा तब तक आप शीशे को नहीं खोल सकते। साथ ही टूटू धवन ने मास्टर स्विच का डेमो भी दिखाया, जिससे कार के सभी विंडोज को बंद किया जा सकता है। कार में ये तकनीक इसलिए दी गई है ताकि स्पीड में चल रही गाड़ी का कोई गेट ना खुले। जो मैं आपको बता रहा था कि शीशों के कंट्रोल के लिए ये ड्राइवर डोर है और ये ड्राइवर डोर के अंदर ही ये मास्टर स्विच है। अब आपको इसको ऑन कर दिया तो आप पीछे के शीशे आप नहीं ऑपरेट कर सकते। तो आप चिल्लाना भी चाहें या किसी से हेल्प भी मांगना चाहें शीशा नीचे करने के लिए तो आप नहीं उसको चला सकते। ओनली द ड्राइवर कैन ऑपरेट इट। सो ये ड्राइवर के हाथ में पूरा ये ड्राइवर के हाथ में कंट्रोल है, और वो जो ऐसे जिनकी हरकतें करनी होती हैं लोगों ने वो इसको ऑन कर लेते हैं और चाइल्ड लॉक ऑन कर लेते हैं, एंड देन दे हैव फ्रीडम ऑफ डूइंग व्हाट। टूटू धवन के मुताबिक कार में मौजूद इसी खामी का फायदा उठाकर टैक्सी ड्राइवर महिलाओं के खिलाफ अपराध को बढ़ावा देते हैं। आपराधिक मानसिकता वाले टैक्सी ड्राइवर पहले चाइल्ड लॉक लगा कर रखते हैं और फिर मौका मिलते ही मास्टर स्विच भी ऑन कर देते हैं, जिसके बाद गेट से लेकर विंडो तक का कंट्रोल उनके हाथ में आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज नाउ बीइंग मिसयूज्ड। ये जो आजकल जितने भी केसेस आ रहे हैं आप सुनते हैं रेप्स के एंड थिंग्स लाइक दैट, दे आर प्री मेडिटेटेड, जिसके अंदर के ड्राइवर ने पहले ही सोच रखा है कि उसने क्या एक्शन लेना है। तो वो चाइल्ड लॉक ऑन कर देता है एंड व्हेन द लेडी सिट्स इनसाइड द कार तो वो शी गेट्स ट्रैप्ड। अनफॉर्चुनेटली जो शीशे नीचे करने की मशीन का जो मास्टर स्विच है वो भी ड्राइवर के हाथ में ही है। हमारी तफ्तीश में ये बात साबित हुई है कि वायरल मैसेज सही है। चाइल्ड लॉक का महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। टैक्सी में बैठने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि उसमें कहीं चाइल्ड लॉक तो नहीं लगा। सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहे इस मैसेज ने महिलाओं की रातों की नींद उड़ा दी थी, इसीलिए हमने इस वायरल मैसेज की पड़ताल करने के लिए अपने एक्सपर्ट से बात की, जिन्होंने हमें समझाया कि चाइल्ड लॉक क्या होता है, इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उनका ये कहना था कि हाँ, ये बात ज़रूर लाजमी है कि इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इस तरीके की अभी तक कोई घटना या वारदात सामने नहीं आई है जिसमें चाइल्ड लॉक का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। पर हाँ,
सावधानी ज़रूर हमें बरतनी चाहिए, वो हमारे हाथ में है। हम इसके ज़रिए आपके दिमाग में किसी प्रकार का भ्रम या डर पैदा नहीं करना चाहते हैं, पर सावधान रहना महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी गाड़ी में बैठें तो ये देखें कि चाइल्ड लॉक जो है वो बंद है। तो हमारी पड़ताल में ये मैसेज और ये जो दावा है ये एकदम सही साबित हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ सरगम पंत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। क्या अब व्हाट्सएप का भी बिल आएगा? क्या व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी? इस तरह का एक मैसेज सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। इसका सच क्या है, आइए जानते हैं। क्या व्हाट्सएप इस्तेमाल के पैसे चुकाने होंगे? क्या चैट से बचने के लिए फ्रीक्वेंट यूजर बनना होगा? क्या है इस वायरल मैसेज का सच? व्हाट्सएप जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। कहीं कोई जरूरी डॉक्यूमेंट भेजना हो या फिर किसी से कोई मैसेज, तस्वीर या फिर वीडियो शेयर करना हो, हमें तुरंत व्हाट्सएप की याद आती है। यही वजह है कि हर हाथ में नजर आने वाले मोबाइल में व्हाट्सएप ऐप जरूर होती है। क्या व्हाट्सएप इस्तेमाल का आपको चार्ज चुकाना होगा? ये सवाल हम नहीं कर रहे। दरअसल व्हाट्सएप पर ही एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अब व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर आपको कुछ चार्ज देना होगा। साथ ही चार्ज से बचने के लिए आसान उपाय भी सुझाए जा रहे हैं। मैसेज में लिखा है कि व्हाट्सएप ऑफ हो जाएगा रोजाना रात 11:30 से सुबह 6 बजे तक। केंद्र सरकार द्वारा जारी नरेंद्र मोदी का ये मैसेज है। हमारे यहाँ व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। हम सभी यूजर्स से अपील करते हैं कि वो इस मैसेज को अपने संपर्क के सभी लोगों को भेजें। अगर आप इस मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो हम आपके अकाउंट को अवैध मानेंगे और उसके 48 घंटे के भीतर ये व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा। मेरी बातों को नजरअंदाज ना करें। अगर डिलीट होने के बाद आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना चाहेंगे तो 499 रुपए का चार्ज आपके बिल में आएगा। आपके सहयोग के लिए आपका मोदी टीम की तरफ से धन्यवाद। व्हाट्सएप जल्द ही आपसे चार्ज वसूलेगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसका नियमित इस्तेमाल करें। कम से कम 50 लोगों के साथ चैट करें। फ्रीक्वेंट यूजर बनने के लिए इस मैसेज को 10 लोगों को भेजें जो इसे रिसीव करें। उसके बाद आपके व्हाट्सएप लोगो का कलर चेंज हो जाएगा। नया व्हाट्सएप एक्टिवेट करने के लिए इस मैसेज को 8 लोगों को भेजें। ऐसा नहीं करने पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर आपको चार्ज देना होगा। ये मैसेज आम से लेकर खास हर किसी से जुड़ा था, लिहाजा हमने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि यूजर्स ज़्यादा बढ़ने के कारण केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि रात के 11:30 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक व्हाट्सएप की सर्विस बंद हो जाएंगी। अगर आप इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं तभी इस सर्विस को आप अवेल कर सकते हैं। हमने जानना चाहा कि क्या वायरल मैसेज को केंद्र सरकार ने जारी किया है। क्या इसके जरिए पीएम मोदी वाकई लोगों को संदेश दे रहे हैं या फिर गलत तरीके से इस भ्रामक मैसेज को फैलाया जा रहा है। इंटरनेट से लेकर कई साइबर एक्सपर्ट्स तक से हमारी टीम संपर्क में थी। इसका सच जानने के लिए हम साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल के पास भी पहुंचे जिन्होंने वायरल मैसेज को ही गलत करार दिया। देखिए, इस तरह की कोई बात फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं है। वैसे भी केंद्रीय सरकार का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। व्हाट्सएप एक ओवर द टॉप एप्लीकेशन है जो एक कंपनी अमेरिका में है वो आपको प्रदान करती है। और देखने में अक्सर ये आ रहा है कि आजकल व्हाट्सएप पर बहुत सारी फेक न्यूज़ यानी कि झूठी तरह की जानकारियाँ या लोगों को मिसलीड करने वाली इन्फॉर्मेशन आजकल प्रकाशित हो रही है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह की कोई जानकारी पर आप रिलाई ना करें, उस पर अमल ना करें। साथ ही साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने लोगों से ऐसे मैसेज पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की। तमाम सारी जानकारियां आपको कहीं ना कहीं डराने की कोशिश कर रही हैं या आपको प्रोत्साहन दे रही हैं कि आप इस तरह की जानकारी और लोगों को भेजें ताकि बाय एंड लार्ज लोगों के दिलों में इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाए। इस तरह की कुछ चीज़ है नहीं और ये एक रूमर मॉन्गरिंग के अंतर्गत है, फेक न्यूज़ के अंतर्गत है। हमारी तफ्तीश में वायरल मैसेज गलत साबित हुआ। इसका केंद्र सरकार से भी कोई लेना देना नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। क्या दिल्ली सरकार राजधानी में एसी बस स्टैंड बना रही है? सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा हुआ एक मैसेज वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं इसकी सच्चाई। दिल्ली वालों के लिए अनोखी सौगात, गर्मी को मात देगा एसी वाला बस स्टैंड। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पारा लोगों को परेशान कर रहा है। गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। वहीं इस तमतमाती गर्मी में दिल्ली वालों के लिए अब राहत की खबर आई है। गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वालों को अब इस भीषण गर्मी में खास बस स्टैंड पर पसीने से तरबतर नहीं होना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि राजधानी में मुसाफिरों की सुविधा के लिए बस स्टैंड में एसी लगवाया गया है। कुछ वेब पोर्टल और न्यूज एजेंसियों ने भी इस पर स्टोरी की है। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ऐसा एक बस स्टैंड दिल्ली के लाजपत नगर रिंग रोड पर शुरू हो चुका है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि लाजपत नगर का ये बस स्टैंड भारत का पहला वातानुकूलित बस स्टैंड है। वायरल हो रहा ये मैसेज हमारे पास पहुँचा तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की।
हमारे संवाददाता सैयद आमिर हुसैन इसकी हकीकत जानने रिंग रोड के लाजपत नगर बस स्टैंड पर पहुंचे। इस चिलचिलाती गर्मी में अगर आपको एसी की सुविधा मिले तो क्या कहेंगे? जी हाँ, एक ऐसा ही प्रयोग हुआ है दिल्ली के लाजपत नगर में। अभी तक आप वातानुकूलित ट्रेन में जब जाते थे तो वहाँ पर आपको वेटिंग के लिए भी वातानुकूलित यानी एसी वेटिंग रूम मिलते थे, लेकिन अब आप बस स्टैंड भी आ चुके हैं जो कि वातानुकूलित बस स्टैंड है। ये बताया जा रहा है कि पहली बार एक ऐसा प्रयोग किया गया। हालांकि इससे पहले ITO पर भी इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ पर भी एक प्राइवेट कंपनी ने एक ऐसी सुविधा दी है जो कि वातानुकूलित बस स्टैंड है। बाहर लू के थपेड़े जीना मुहाल कर रहे थे तो वहीं एसी वाले बस स्टैंड में लोग सुकून से बैठे थे। बहुत अच्छा है सर, प्राइवेट कंपनी ने भी बहुत अच्छा किया और करना चाहिए। चाहे पहले हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, यहाँ पर कभी धूप वूप आती तो हमें काफ़ी दिक्कत हो जाती थी, अब तो काफ़ी अच्छा है। हमारी तफ्तीश में ये बात साबित हो गई कि एसी बस स्टैंड से जुड़ा मैसेज सही है। एक कंपनी ने लाजपत नगर में बस स्टैंड पर एसी लगाया है। टीम न्यूज़ नेशन। और ज़्यादा खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsnation.in पर। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।